بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، پھر ہم دوسرے مومن بھائی کو لیتے ہیں. جی سہیل بھائی، میں تو ایک ویڈیو کا لنک لے کر آیا تھا. اگر آپ ہاں ویورز جو ہے بہت سارے ہیں تو ان کو بھی بات پتہ چلے گی. اگر آپ اجازت دیں تو امت بھائی صاحب وہ اس کو پلے کر لیں گے 4 منٹ سے ایگزٹ. اچھا، وہ اسٹرائک تو نہیں آئے گی نا اس میں؟ اس کو چھوٹا کر کے امت لگاؤ. کس سے ریلیٹڈ ہے وہ؟ یہی تھوکی سے ریلیٹڈ ہے. اچھا، اسکرین چھوٹا کر دو امت بھائی. اچھا، وہ ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ہمارے جو مومن حضرات ہے، اپنا LLB صاحب، وہ پتہ ہے نا اپن روٹی میں کبھی کبھار مسکا اور جام لگا کے کھاتے ہیں. کبھی ایسا بھوک لگ جاتی ہے، ٹائم نہیں ہوتا اپنے پاس، صبح صبح ہوتا ہے کدھر جانا ہوتا ہے، تو ہم کو گھر والے جو ہے وہ روٹی میں اصلی گھی لگا کے یا پھر مسکا اور یہ جام جو ہے وہ لگا کے دے دیتے روٹی لپیٹ کے. تو اگر رسول اللہ کا ٹٹی مبارک موجود ہوتا تو یہ لوگ اس کو ایز اے جام اور بٹر جیسا یوز کرتے. پینٹ بٹر جیسا نہیں لگاتے، دکھتا بھی ویسی ہے پینٹ بٹر. پورے روٹی میں پھیلا کے ٹٹی مبارک کو رول کر کے اس کو ٹٹی روٹی، اسپیشل ٹٹی روٹی، جنتی ٹٹی روٹی. حد ہے یار. چلاؤ یہ ویڈیو چلاؤ. بہترین خوشبوؤں سے معطر ہو. اوہو، جب تھوکتے ہیں نا لوگوں کو کراہیت ہوتی. کیا بات. جبھی تو جا بجا لکھا ہوتا تھوکیے مت. ہاں ہاں ہاں، پبلک پلیسز پر، لاری اڈوں پر، اسٹیشنز پر، ایئرپورٹس پر بیماریاں پھیلتی ہیں. صاف مقامات غلیظ ہو جاتے ہیں. مگر قربان جائیے محبوب رب العالمین رحمت اللہ. چلا ایک منٹ. ابھی دیکھو یہاں تک ان کا دماغ چلا کہ نارملی اگر کوئی تھوکے ہوئے پبلک پلیسز پہ کدھر پر تو وہاں سے بیماری پھیلے گی، وہ گندی ہو جائے گی، جگہ گندی ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی. یہاں تک ان کا دماغ چلا. اب جیسے ہی اسلام کی بات آئے گی، رسول اللہ کی بات آئے گی، اب دیکھنا ان کا دماغ کیسا ریورس یو ٹرن لیتا ہے. یعنی یو ٹرن سیدھا، وہ اب دماغ کام کرنا بند کر دے گا. چلاؤ. مگر قربان جائیے محبوب رب العالمین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن اقدس یعنی تھوک مبارک پر کس کی شان ہی نرالی ہے. تھوک مبارک مولا علی کی دکھتی آنکھوں میں یہ لوگ. تھوڑا فاسٹ کر دو اس کا سپیڈ، فٹافٹ ختم ہو جائے. اچھا، یہ تھوک مبارک ٹرم ہم نے نکالے. ہاں بھائی، دہن لگتا ہے تو آنن فانن سرخی چلی جاتی ہے، صحت آ جاتی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ آنکھ جو رخسار پر بہہ جاتی ہے، آقا لعاب دہن لگتے ہیں تو چشمے زدن میں آنکھ درست ہو جاتی ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، بینائی پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ حسین ہو جاتی ہے. کیا بات. اور یہ امتیاز حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں باقی رہا کہ جو آنکھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درست فرمائی تھی، ان کی نسل میں وہی آنکھ دوسری آنکھ سے بہتر ہوتی تھی. قربان جائیے لعاب دہن اقدس کے. اچھا، اس کو تھوڑا میوٹ کرو. ابھی دیکھو یہاں پہ مطلب میراکل کی انتہا دیکھو کہ جس کو تھوک لگا کے آنکھ لگائی تھی، صرف اس کی آنکھ حسین اور زیادہ یعنی روشنی والی نہیں ہوئی، بلکہ ان کی جتنی نسل تھی سب کی ایک آنکھ حسین اور روشنی والی ہو گئی. قربان جاؤ یار ایسے آقا پر. جینز ٹرانسفر ہو رہا بھائی. جیسے بہت سارے لوگوں کو جو ہے باپ کو اگر ڈائبٹیز تھی یا پرابلم تھا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جینیٹک ہوتی ہے بیماریاں، وہ بچوں میں بھی آ جاتی ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ کی جو شفا ہے اور آنکھوں کا حسین ہونا اور اس کی بینائی کا بڑھنا، روشنی کا بڑھنا، یہ جینیٹیکلی اس کے پورے خاندان میں ٹرانسفر ہو رہا ہے.
सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ ऐसे रसूल पे। आगे चलाओ। हजरत आमिर बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु उसकी बरकत से हाथों हाथ शिफायाब हो जाते हैं। हजरत हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु की मां और बहन लुआब बहन अक़दस की बरकत से फौरन सब्र और करार पा लेती हैं। यही लुआब बहन अक़दस हजरत मोहम्मद बिन हातिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के जले हुए बदन पर लगता है तो आनन फानन वो बदन ऐसा हो जाता है जैसे कभी जला ही नहीं था। तो दुनिया में तो करो जला हुआ बदन पे थूक लगा दिया। अच्छा, एक जोक अच्छा है, एक ये अच्छा है कि एक आंख क्यों हसीन किया रसूलुल्लाह ने, दोनों वो जो थूक का इफेक्ट खाली एक ही आंख पे था। रसूलुल्लाह ने जो थूका था वो इफेक्ट खाली जो आंख पे थूक लगाया था उसी में था, वो अंदर से मुंह नहीं हुआ। वो भी इवोल्यूशनरी। अरे बाप रे बाप। और दूसरा देखो, जल गया था बंदा, थूक मुबारक लगा दिया तो वो पूरा जो है उसका बदन फिर से पहले जैसा हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, एंटीसेप्टिक क्रीम की भी बात आएगी अभी आगे। हाँ वो भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर मोमिन भाइयों से ये है कि रसूलुल्लाह का जब दांत मुबारक शहीद हुआ था तो रसूलुल्लाह ने अपना थूक लगा के वो दांत मुबारक को क्यों नहीं चिटका लिया था? एडम सीकर कह रहे हैं मिराकल मिराकल मिराकल। आगे चलो आगे चलो। तबीब ऐसा है, कोई ऑइंटमेंट, कोई मरहम, कोई क्रीम ऐसी है कि लगाएं तो फौरन शिफा हो जाए, निशान भी खत्म हो जाए? कोई भी नहीं, ऐसी ना है ना होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआब दहन अक़दस की बरकत है कि लगता है हाथों शिफा होती है, निशान भी खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह। शिरा हुआ बाजू लुआब दहन अक़दस की बरकत से जुड़ भी जाता है, ताकतवर भी हो जाता है, और उसी हाथ से आका के गुलाम आका के दुश्मन को मौत के घाट उतार देते हैं। सुभान अल्लाह। और हाथों हाथ जबान की लुकनत दूर हो जाती है, खारी कुएं मीठे हो जाते हैं, खुशबूदार हो जाते हैं, दूध पीते बच्चे सैराब हो जाते हैं। ओहो सुभान अल्लाह। क्या बात है। आला हजरत अली रहमतुर रब्बिल इज्जत कितनी मोहब्बत भरी बात बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं। शाह क्या आजाद तेरी। ओहो गाना भी गाने लग गए, बताओ इसको। हाँ साहिल भाई, ये जो कह रहे थे ना दूध पिए बच्चे, तो वो भी हदीस है कि आप सरकार के बारगाह में, आ हजरत की बारगाह में छोटे बच्चे लाए जाते जो अभी अभी पैदा हुए हैं, तो आप इनके मुंह में थूक देते तो पूरी रात ना वो चिल्लाते ना वो रोते और ना कि उनको माँ के दूध की जरूरत भी पड़ती। उस टॉपिक पर उन्होंने ये बोला। बाप रे बाप। बच्चों के साथ भी, छोटे बच्चों के साथ भी ये हरकतें होती थी। सब हमारे भाइयों से गुजारिश है कि रसूलुल्लाह के इतने बड़े बड़े कारनामों के लिए सब मिराकल 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 लिखे। ओ बाप रे बाप। चलो अब कोई मोमिन को ले लेते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। यार मनीष कुमार साहब, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए प्लीज, क्योंकि हमारे मोमिन भाई को जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। जैद साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। सब मिराकल मिराकल लिख रहे हैं, फॉग भी कह रहे हैं मिराकल मिराकल मिराकल। अच्छा, एक मोमिन भाई कोई कह रहा था मुझे लो स्क्रीन पर। कौन सा भाई है? भाई स्टूडियो में ज्वाइन करें आप, जगह बची है। महफूज आप अगर मोमिन है तो आप जुड़ जाइए, आपका हम इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, एक पहले खालिद सूफी साहब से बात कर लेते हैं, बाद में शाहिद भाई से बात करें, क्योंकि शाहिद भाई हमेशा आते रहते हैं। खालिद सूफी साहब, आपका इस्तकबाल है। हाँ साहब, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। सर मैं मोमिन है किससे आप? बात? जी हाँ, मैं आप साहिल बोल रहे हैं? जी साहिल बोल रहा हूँ। ये बताइए, पहले तारुफ ये हो जाए क्योंकि पहली मर्तबा आपसे गुफ्तगू हो रही है। ये बताइए कि आप जो एक्स मुस्लिम बने तो क्या कुरान की वजह से बने या हदीस की वजह से बने? सब ओवरऑल। तो फिर एक काम कीजिए, मेरे लिए कुरान से कोई एक सवाल रखिए, क्योंकि मैं अहले कुरान। हाँ अच्छा, आप अहले कुरान है? जी हाँ, मैं कुरान से ही जो है आपकी
किसी एतराज का हदीसों को जवाब नहीं नहीं। मानते? मानते नहीं, जो कुरान से साबित हो जाए वो हदीस है, मानने की बात नहीं है। जो कुरान से साबित हो जाए तो वो तो कुरान ही साबित हो हो गया ना, जाए फिर वो हदीस आई नहीं। नहीं, वो जो हदीस कुरान से साबित हो जाए वो हदीस है, लेकिन पहले तो कुरान नहीं, चाहिए कैसे ना, साबित हो जाए? क्या उसके बाद पैमाना क्या हदीस है? चाहिए ना। हाँ, पैमाना क्या है? उसमें कुरान से आयत में कैसे साबित बताऊंगा, होगी? किसी भी हदीस में चलो, मेरा आपसे सवाल है, इन्नमल आप आमाल। चूंकि अहले कुरान है और आपने हदीसों का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, मुझे नमाज का मुकम्मल तरीका कुरान से बताए। हाँ, नमाज का पूरा मुकम्मल तरीका आपको इस्लाम में मिलेगा, कुरान से पहले भी मिलेगा, हज का भी तरीका मिलेगा, कुरान मैं में ना जो है, सवाल मैं कुरान रिपीट आने कर से दूं? पहले भी, हाँ भाई मैं आपको कह रहा हूँ, नमाज कुरान आने से पहले भी नमाज मैं थी, सवाल रिपीट और कर दूं? नमाज के पूरा, फिर मैं मैं सवाल भी रिपीट जवाब कर दूं? रिपीट। हाँ बोलो, नहीं, मेरा सवाल आपने नहीं समझे। आपने बताइए। कहा था कि आप अहले कुरान है, आप कुरान को मानते हैं, और आपने कहा था हाँ कुरान से मुझे कोई सवाल करो। ठीक है, हाँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कुरान से मुकम्मल नमाज का तरीका पांचों मुकम्मल टाइम नहीं की होता, कितनी? मुकम्मल ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम जो है मुखर्रिन नहीं है, हम मुस्लिम है, हम इस्लाम की वजह से मुस्लिम है, हम कुरान की अच्छा, वजह से थोड़ा रुक जाओ, मुखर्रिन नहीं है। थोड़ा रुक जाओ, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। दोस्त अहबाब, हमारे जितने देख रहे हैं, भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के फेवरेट इमाम मुर्तद हाजिर हो चुके हैं इस सभा में, इस गुफ्तगू में, इस स्टूडियो में, इस स्ट्रीम में। आप सभी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दुलारे एडम सीकर का इस्तकबाल करता हूं। एडम, आपका स्वागत। हेलो एवरीवन, आपका फेवरेट मुर्तद आपके सामने हाजिर। इतनी बेहतरीन किस्म की इंट्रोडक्शन का बहुत 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 धन्यवाद। एडम सीकर, तेरा जो इंट्रोडक्शन है ना, उसमें मेरे को सबसे बेस्ट पॉइंट जब वो बोलता है ना, एडम सीकर, ये मेरे को इतना प्यारा लगता है कि पूछ मत। अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। आहा, ओके, जी, एडम मरहूम साहब, आपका स्वागत है। खैरियत से हैं लाला जी आप? सुभान अल्लाह, और माशाल्लाह, मैं बिल्कुल समझ ठीक गया ठाक। कि एडम ने इतने अचानक से एंट्री क्यों मारा है, मैं समझ गया, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हटूंगा। एडम, मैंने इनसे सवाल किया था, जी जी, इन्होंने कहा कि ये सूफी है और ये अहले कुरान है। और इन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, कुरान से मेरे को एक सवाल बताओ। तो मैंने इनसे सवाल किया कि भाई मुझे मुकम्मल नमाज का तरीका और जो 5 टाइम की नमाज है उसकी रकात पूरा मुकम्मल वो कुरान से बता दे। तो भाई का क्या जवाब है? सूफी साहब, आप एक बार रिपीट कर दे। जी सूफी साहब। पहले ये बताइए कि मैं आदम सीकर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साहिल से, ठीक है? नहीं, साहिल पीछे हट गया, आपको अभी एडम सीकर से नहीं बात नहीं, करना पड़ेगा। मैं पहली मर्तबा आपसे बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ साहिल से बात करूंगा, ओके? मेरे साथ बात करने अरे से क्योंकि पहले मैं कर गए आपसे इससे हजरत। पहले कभी बात नहीं किया, हजरत इतनी मैं तो जल्दी आपसे मेरे करने बात से से भी नहीं आप किया नहीं कभी। किए थे? किससे? नहीं, आदम सीकर से बात हो चुकी है अभी। कब कब कहाँ किस तरह कैसे किधर? हमें तो अब याद भी नहीं। अरे भाई, हाँ भूल गए होगे तुम। वो जो चलो ईसा वो अलैहि तो बात सलाम की जो। गुफ्तगू जो पेट में जो बताया ना मैंने, जो जो दो बहनें जब मिली, याह्या की और माँ, और ईसा की माँ जब मिले थे, मिले थे। तो वो दोनों की माँ ने जो सजदा वाला था ना, उस वक्त अच्छा, हमारी गुफ्तगू हो चुकी, और हो कई चुकी बार थी। हो चुकी है, तो सजदा हुआ था, कई ये तो बार हम हो मानते चुकी हैं है। ना। मैं सजदा असल तो हुआ था। असल चीज, हाँ साहब, सजदा हुआ था ना, याह्या अलैहिस्सलाम की माँ नहीं नहीं, वो हम ने सजदा तो बाद में किया था करेंगे। ना। याह्या अलैहिस्सलाम ने सजदा किया था ना अपनी माँ के पेट के अंदर, ईसा यस अलैहिस्सलाम सर, को उनकी माँ के पेट के अंदर, राइट? हाँ, ये तो आपने माना वही था ना? जो है ना, अगर मुझे आपकी कन्वर्सेशन याद हो तो वो यही थी कि हाँ सजदा किया था, लेकिन ये ताजीमी सजदा था। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे याद करवा दें। एक बात और, नहीं नहीं, पहले मरियम ये याद करवा अलैहिस्सलाम, दें कि मैं सर एक सर एक बात तो खत्म करे फिर आगे चलेंगे। मुझे याद करवा दे कि वो तो क्या हो गई हमारी थी, यही डिस्कशन वो हुई तो थी ना? हमारी बात हो गई थी ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या वो सजदा किया हम्म, था ना, लेकिन आपके मुताबिक वो हाँ ताजीमी सजदा था? हाँ, नहीं वो कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक और एक बात थी, अच्छा, मैंने कुछ नहीं बोला। याद सर रखिए। देखें, आप हाँ, भागते क्यों इतनी जल्दी सर?
सर क्यों भागते हैं बोलो सर? बोलो उस दिन बोलो याद बोलो करवाएं ना मुझे, आपने उसको कहा था ना ताजीमी सजदा है। सर हाँ मेमोरी हाँ मुझे वो मुझे नहीं इतने बात लोगों से बात करता हूँ मैं, मुझे कुछ याद नहीं रहते लोगों के नाम, लेकिन जब आप मुझे टॉपिक बता देते हैं तो मुझे याद आ जाता है। तो वो ताजीमी सजदा था ना बकौल आपके, लेकिन सजदा किया था। हाँ, लेकिन अब मैं सुभान और अल्लाह, एक बात सुभान बताने जा अल्लाह। रहा जी हूँ। सर, जी सर, जी। तो आपके एक आपके और एक बात मुताबिक बता। याह्या अलैहिस्सलाम को माँ के पेट के अंदर पता था कि दूसरी औरत जो कि माँ है, उसके पेट के अंदर जो ईसा है उसको मैंने सजदा करना है। यानी बच्चे जो भी पैदा भी नहीं हुए उनको पता है कि मैंने उस बच्चे को सजदा करना है। सर मोहम्मद साहब को सजदा किस किसने किया था अपनी माँ के पेट के अंदर? मैं मिस्टर आदम जी सर, सीकर, सर मैं सुन मैं रहा हूँ सर अभी हजरत। एक और एक बात बताने आया था। जी हजरत, जी हजरत। जिस वक्त मरियम की माँ ने जब जी मन्नत मांगी थी कि जो है अगर बच्चा पैदा होगा तो हम्म, मैं बैतुल मक़दस में इसको खादिम रखूंगी, वो कहाँ पे है बात? बैतुल मकदस में खादम रखूंगी। सर ये कहाँ पे है कुरान में? मुझे हाँ तो नहीं पता लगा। आपने कुरान में से हाँ, पढ़ लिया ये? तो फिर एक काम करिए, जी 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 जी, ये पढ़ाइए सवाल सर। हम फिर अपने एक सवाल भी देता हूँ। बॉर्न जी अगेन जी, दे क्रिश्चियन, देने। जी जी, दे दे दे। बॉर्न अगेन क्रिश्चियन याद है? आप हैं बोर्न अगेन क्रिश्चियन है आप? है नहीं, बता रहा हूँ मैं, ये मौजू याद नहीं रख लो आप आप। हैं? नहीं अच्छा, तो मैं कह अब रहा हूँ कि टॉपिक कह रहा हूँ मैं, बॉर्न अच्छा अगेन टॉपिक कह रहे हैं, क्रिश्चियन के चलिए ठीक ऊपर है, ये। कर लीजिए, हाँ, कर लीजिएगा, कर तो लीजिएगा। बॉर्न अगेन आज की स्ट्रीम में आप हाँ, क्या कहते हैं सर? आज की स्ट्रीम में आप क्या कहते हैं? आपसे बात करना नहीं है ना साहब, मेरे को वो सर बेचारे वो तो क्या चले नाम गए है, वो जिनसे साहिल से बात कर। चले गए, वो खाना खाने चले गए। तो फिर बाद में बात करेंगे, भाई आप अब आए हैं तो क्योंकि बात मैं कर लेना। नहीं नहीं, अच्छा असल में क्या था, नबी पाक का थूक मुबारक पाक है कि नहीं है ये बता दें, आप सूफी हैं। नहीं नहीं मिस्टर आदम सीकर, जी 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 मैं जी जी। आपसे तारुफ है मेरा। आप कोई बात नहीं हजरत, आप हुक्म बाइबल करें सर, स्टडीज के सुनो सुनो मैं सुनो, आपके साथ बात कर रहा नहीं हूँ ना नहीं, सर। बात नहीं, मुझे नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? थूक मुबारक नबी पाक का पाक है कि नहीं ये तो बता दें यार, दुनिया को बता मुझे दें, बात क्या हो नहीं गया? करना है, मैं अभी आपको क्या बोला, कुरान से सर बोलो बोला इतनी ना, जल्दी क्यों डर गए सर? कुरान बोलो ना। मैं कुरान कुरान, बोलूं? भाई इस्लाम की बात कुरान से होगी ना, अच्छा तो उसके अभी बाद आपको हदीस साहिल का भाई ने नंबर बताया आएगा। था ना कि नमाज का तरीका कुरान से बता दें। आप पढ़ते हैं हाँ, नमाज के नहीं पढ़ते? अखजु मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, ठीक है? बेहतरीन, ये इब्राहिम का मकाम ये मुसल्ला आयत है। कहाँ है? हाँ हाँ, ये कहाँ कुरान है में। आयत? कुरान में है। कहाँ है? कुरान में है कुरान ना? में। मान हाँ लिए ना? हाँ, मान हाँ, लिया। तो अब मैं जो है मुकाम मुसल्ला, इब्राहिम में जो नमाज, मुसल्ला, मुसल्ला है ना मकाम मुसल्ला इब्राहिम का? सल्ला से, सला से सल्ला है, से मुसल्ला है ना, ठीक है ना? सला से, तो हाँ ये आप हाँ। नमाज कैसे तो पढ़ते हैं कुरान अब में है? नमाज वहीं से सीखूंगा मैं, हाँ हाँ हाँ, हदीस में वहीं नहीं से सीखे। देखूंगा ना कुरान में बिल्कुल देखूंगा बिल्कुल मैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे सर कैसे नमाज पढ़नी है बताइएगा? वो जब भी पढ़ रहे हम, अब जो वहां पे नमाज पढ़ रहे वो हम अपनी मस्जिद में भी पढ़ रहे, वो हमारा कैसे वहां क्या से दिखाएं, आया कहाँ हुआ पे है, लिखा है? वहीं वहां पे से, सिर्फ लिखा है नहीं नहीं मुसल्ला। वहीं से आया हुआ है, ओके, कुरान व्हाट में डज नहीं, मुसल्ला कुरान में मीन्स? खाली ये देखो, आयत के माने क्या है आदम सीकर? सर एक सेकंड सर, आयत को मानी अभी आयत के देखेंगे। माने क्या है? ओह सर आयत के मानी आयत के बहुत माने सारे क्या हैं। है? आयत के नहीं मायने नहीं नहीं, बहुत सारे कोई होते एक हैं। माने बोलो, आप एक अपना माने वाला बोलो। बता दें। मैं आपको 10 दिखा दूंगा अभी मैं आयत के मायने, लेकिन आप मुझे अपने एक वाला आप बता तो दें बोले, ताकि मैं उसी पे चलूंगा। सर मैं तो नहीं नहीं आपके नहीं, साथ मुझे चलूंगा आपका सर। मालूम करना। अरे मुझे इस मालूम करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आयत को छोड़े, मुझे नहीं परवाह। आयत आपने है कहा ये आयत, इब्राहिम का मकाम मुसल्ला है, मैंने मान ये लिया। आयत है। अब अरे यार, ये आयत है, इब्राहिम के मकाम पे कैसे नमाज पढ़ी मुसल्ला, जाती थी वो बताएंगे? हाँ, ये आयत हम्म, है या क्या है ये? कुरान की आयत है। हाँ, आयत के माने क्या है? आयत के मानी मेरे को नहीं पता सर, ये आप बताएं। बकरा की 125 है। नहीं 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 नहीं, साजिद भाई रुक जाए, साजिद भाई रुक डरो जाए। डरो, उनसे ले। जी सर, हाँ, जी सर, आयत, आयत आप के आयत के माने अपने मायने बताएं। निशानी, हिंट हिंट, क्लू, निशानी और हिंट, बेहतरीन। तो निशानी, सर इसमें क्या नहीं हिंट नहीं है? नहीं नहीं, सुन, निशानी और क्लू, क्लू, क्लू भी क्लू, है वो। क्लू, हाँ, तो क्लू सिर्फ भी है जी, क्लू क्लू दिया भी, इस आयत में कि क्लू तुम दिया। मुकाम इब्राहिम में खाने काबतुल्लाह में जैसी हम्म नमाज अदा हो रही है, हम्म अभी भी, आज भी, हम्म पहले भी, हदीसें हम्म। लिखने जाने से पहले भी, अच्छा ये बल्कि मैं आयत, समझता हूँ ये कि कुरान से हाँ हाँ पहले हाँ, भी। बेहतरीन बेहतरीन, आई एग्री, लव यू फॉर दैट, आई एग्री विद यू 100%। इतने लोग गवाह हैं, 4000 लोग गवाह हैं कि हमारे प्यारे सूफी भाई ने कहा जिस तरह की नमाज मकाम इब्राहिम पे हो रही थी उसको हमने फॉलो करना है। सर ये वाली आयत कब नाज़िल हुई थी? वो कब अब नहीं बात कर रहे हो भाई, मैं आप नहीं नहीं सलात की सर, बात अभी करे बोल सर दिया मैं, ये सर कब देखे ना वब हजरत, की बात नहीं हो रही। हजरत ये आयत कब नाज़िल हुई थी? हम्म, वो नहीं, हमको ये सेकंड सवाल हो गया।
نہیں میں پوچھ رہا ہوں سر, آپ نے 2 سوال کے, ہاں میں مان لیا نا, تو آیت کب نازل ہوئی یہ پوچھ رہا ہوں. وہ نہیں, ہمارے یہ سیکنڈ سوال ہے تمہارا, یہ سوال ہم بعد میں کریں گے, پہلے یہ ختم ہو گئی بات. نہیں ختم نہیں نہ ہوئی, یہیں سے تو آگے چلے گی, یہیں سے تو آگے چلے گی. یہ جو مقام ابراہیم ہے جو کہ مصلی ہے, یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ وہ سوال دوسرا ہو گیا نا بھائی. میں آپ نماز میں پوچھ رہا ہوں نا, بول دیا کہ میں نماز وہیں سے لوں گا جو خانہ کعبۃ اللہ میں نماز ہو رہی ہے. سر میں جگر آپ کے ساتھ ہوں, لو یو. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ وہ نہیں, آپ بولو. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا سر؟ نہیں پتا بھائی مجھے. سورہ بقرہ کی آیت ہے سر, میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے, وہ کہتی ہے مقام ابراہیم مصلی, رائٹ. آپ کو دکھاؤں, نکال رہا ہوں قرآن, میں یہ دیکھا بھائی, میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اسکرین شیئر, ایلو, ہاں کرو, یہ لو, کرو. کیا بولے؟ 100 چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 125. 125, ہاں جی جی جی, میرا بھائی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ ساجد صاحب. جی میرے بھائی, کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے سر, یہ بقرہ کی آیت ہے 125. جی جی جی, وہی پڑھنا, جی جی 125 ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں نا. نہیں یہاں 25 پہ تو نہیں, ہاں نماز مقرر کر لو, رائٹ. 125 سر, 125, 125. ہاں سر نماز کیا ہے؟ کب نازل ہوئی سر؟ نہیں کب نازل نہیں, نماز کیا ہے آگے دیکھو. نماز کیا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, پتہ ہے, پڑھ لیا, مجھے یہ بتا دیں کیا ہے. چلے یہ بھی آپ بتا دیں, پہلے میری بات کا جواب دیجیے. جی بہترین, پرفیکٹ. بھائی ہو گیا, بھائی ہو گیا. سنو ڈن یار. اب میری بات سر, اب میری بھی تو بات کر لینا سر, میں بھی تو بیٹھا ہوں نا سر. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ وہ رکع و سجود. جی بالکل ڈن, یہاں سامنے رکھی ہوئی ہے, 110% ڈن سر. میں آپ کو چمی کرتا ہوں اس بات پہ. اب آپ مجھے بتا دیں یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اچھا ٹھہرو, ایک منٹ ذرا پتا کریں گے. یہ جو ہے نا, یہ کیا کہہ رہا ہے, پاک صاف رکھو. ہاں پاک صاف رکھنا ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ بھائی طواف کب فرض ہوا؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ارے بھائی طواف کب فرض ہوا؟ ارے بھائی آیت کب نازل ہوئی؟ بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں بتا دے ہمیں. سارے لوگ جو بیٹھے ہیں لائیو اسٹریم میں, 4000 کے لوگ سن رہے ہیں ہمیں, ان سب کو بتا دے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے. حضرت ہاں بولیے, کب نازل ہوئی؟ کب نازل ہوئی سر؟ آپ بولو یار. میں تو بول رہا ہوں کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا, ہجرت کے فوراً بعد 5000 سال پہلے کی آیت ہے. ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی. ارے بھائی صاحب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یارو. ذکر ہو رہا ہے لیکن آیت تو ہجرت کے بعد نازل ہوئی نا. سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. کب نازل ہوئی آپ بتا دیں میرے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے بعد آئے کیا یار؟ قرآن ابراہیم کو نازل ہوا, یہ آیت ابراہیم کو نازل ہوئی تھی, محمد کو نازل نہیں ہوئی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں پاک صاف رکھو میرے بھائی. نہیں, یہ آیت محمد کو کب ملی, ہجرت کے بعد یا ہجرت سے پہلے؟ ارے کب نہیں ملی یار, یہاں ابراہیم علیہ السلام کو بول رہے کہ پاک صاف رکھو جگہ. یہ آیت ابراہیم علیہ السلام کی آیت ہے. اب آپ پاز کریں. آپ کو پتا ہے آپ بری طریقے سے پھنس چکے ہیں. آپ پتا ہے کیوں آپ برے طریقے سے پھنس چکے ہیں؟ میں بتاتا ہوں اب آپ کو. اب بولیے گا نہیں, میری حجت سن لیجیے گا, پھر ٹینٹا کیجیے گا. آپ جیسے لوگ میں نے بہت دفعہ دیکھے اپنی دنیا میں, ٹھیک ہے. یہ آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی. محمد اس وقت مکہ سے نکل کے مدینہ آ چکا ہوا ہے. محمد پہلے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا. محمد کو قرآن بتاتا ہے کہ اپنا قبلہ بدل لو اور قبلے کو نزدیک والی مسجد کی طرف کر دو, دور والی مسجد سے. یہ قرآن بولتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے اور مقام ابراہیم کے بارے میں بات کی ہے, اس وقت مقام ابراہیم پہ جو طواف ہو رہا تھا وہ ننگا طواف ہو رہا تھا. ننگا, الف ننگا,
अलिफ नंगी लड़कियां और अलिफ नंगे लड़के काबे का तवाफ कर रहे हैं। मकाम इब्राहिम पे जिस तरीके से सलात मुसल्ला बना हुआ है वो अलिफ नंगा बना हुआ है, और तवाफ भी इस वक्त हो रहा है मकाम इब्राहिम पे अलिफ नंगा। अल्लाह कह रहा है तुम्हारा अल्लाह कि मकाम इब्राहिम का तवाफ करो जिस तरीके से हो रहा है, मुसल्ला मकाम इब्राहिम का बना हुआ है वो अलिफ नंगा है। बताओ। अरे यार जरा ठहरो, हो गई बताओ ना ना, मैं बात बैठा हूं तुम्हारी? ना। हो गई? बोलो ना मेरी हो जान, गई? नहीं अभी और क्या बोलना है? बोलो ना बोलो। मेरी जान। साफ रखो बोल रहा। क्या बोल रहा? हाँ साफ सुथरा और नंगा, भाई लेकिन मेरे साफ सुथरा घर को कट्टी ना साफ करना वहां पे। रखो। अरे मेरे भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोल रहा, बोले तो अल्लाह ताला। और मेरी जान मैं बोल रहा हूँ ना, कुरान की आयत है ना, मोहम्मद को नहीं बोल रहा। अरे ये किसको बोल रहा नहीं, है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोल रहा है कि मेरे घर की पाक साफ और रखो, ये कि ताइफीन हमने के इस लिए, घर काबे आकिफीन को के लिए, लोगों के सिद्दीक लिए रुकू मरकज के लिए। बनाया, और ये कि हमने इस घर को लोगों के लिए मरकज बनाया, अमन की जगह करार दिया, और लोगों को हुक्म दिया कि इब्राहिम जहाँ के इबादत के लिए खड़ा होता था इस मकाम को मुस्तकिल मुसल्ला बना लो। इब्राहिम और के लिए इब्राहिम आए और थे। इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस इब्राहिम घर को के लिए तवाफ आए और थे ये। इत्काफ करना। यार बोलते क्यों बीच में जब मैं बोल रहा हूँ? चुप। और पाक साफ रखो इस जगह को। अब मुझे बताइए कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई है उस वक्त बताया जा रहा है इब्राहिम का मकाम जो है वो मुसल्ला है, इब्राहिम को हमने मुसल्ला यहाँ पे जगह बना के दी थी। अब मुझे बताएं उस वक्त जिस वक्त मोहम्मद को आयत दी जा रही है उस वक्त काबे में नंगा तवाफ हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नंगा डांस, अरे भैया नंगा 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 पुंगा मेरे घर डांस। को पाक साफ रखो बोल के कई को बोल रहा अल्लाह। पाक साफ नंगा रह के पाक साफ नहीं हो सकते मेरे आप? घर को पाक साफ क्यों रखो बोल रहा? किससे पाक रखो? बुतों से? क्यों बोल रहा? किसको बोल किससे रहा? पाक रखो? नहीं भाई किसको बोल रहा? किससे किसको पाक बोल रहा? रखो? किससे? अरे ये मेरे घर हाँ, को अब आप मुझे मुतहर बताएंगे रखो, कि ताहिर है ना? आपने कहा कि इब्राहिम का मकाम मुसल्ला है। अब मुझे बताएं कि इब्राहिम नमाज कैसे पढ़ता था, हाँ, बताएंगे? तो इब्राहिम कुरान से बताएं। अलैहिस्सलाम को कह रहा है अल्लाह ताला कि ये कैसे? जगह को पाक कैसे साफ पढ़नी रखो, है? कैसे? ताइफीन के लिए, हजरत कैसे आकिफीन पढ़नी के है? लिए, हजरत सवाल सुने, कैसे सिजदत पढ़नी करने है? वालों के लिए, रुकू करने हजरत वालों। कैसे खत्म पढ़नी होगी है? बात। खत्म हजरत खत्म कैसे पढ़नी? खत्म 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 कैसे खत्म खत्म हो गई? खत्म पढ़नी कैसे है? खत्म 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 नंगा डांस, खत्म। नंगा 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 डांस कैसे पढ़नी है? भाग गया भाग गया यार। ओह माय गॉडनेस, इतनी जल्दी भाग गया। क्या करेंगे लाला जी, बस ऐसे ही होते हैं। साजिद भाई, ये सूफी लोग जो है ना, ये जितना डांस करते हैं ना, ये साले डिस्कशन में भी उतना ही डांस करते हैं, लेकिन इनका डांस चाहे रियल का हो चाहे डिस्कशन का हो, ये डांस में जीत नहीं सकते साले। इनको बिल्कुल, सिर्फ ये चाहिए पढ़ लिख कर आते नहीं है और वहीं पे बोंगिया मारने